Bismillahirrahmanirrahim. Topic for today is coronary artery disease, and mainly we will focus on angina pectoris and myocardial infarction. Angina pectoris, myocardial infarction are the part of coronary artery disease along with arrhythmias, heart failure, and it is a cascade of disease. Sudden death can also result as a result of the coronary artery disease. In coronary artery disease, there is atheroma formation, plaque formation inside the coronary arteries which supply the heart, which supply the myocardium with all the blood and oxygen required by the heart muscles to work. So there is atheroma formation or plaque formation inside the coronary arteries. This atheroma or plaque obstruct the blood flow to the myocardium, resulting into the angina pectoris or myocardial infarction or other results of coronary artery disease. There are two coronary arteries supplying the heart, right coronary artery and left coronary artery, both arising from the ascending aorta. They both supply all the muscles of the heart, all the cardiac muscles, so that the cardiac muscles can perform their function. And if there is obstruction in the blood flow to the myocardium due to obstruction in the blood flow due to some atheroma formation inside the coronary arteries, it will result into the coronary artery disease. So right and left coronary arteries arising from the aorta supply blood and oxygen to all the muscles of the heart, blood supply of the heart. Coronary artery disease may result into angina pectoris, myocardial infarction, heart failure, arrhythmias when the rhythm of the heart is not normal. For example, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, atrial fibrillation, atrial flutter, and sudden death even may result from the coronary artery disease. If the MI is resulting into a big infarct or cardiac rupture, obviously it can result into sudden death. Now first of all, angina pectoris. Angina means choking or suffocation, that means difficulty in breathing. Pectoris means chest. So angina pectoris is a medical term in which there is chest pain or chest discomfort. It occurs when the myocardial oxygen demand is more and the coronary arteries are supplying less amount of oxygen to the heart. As a result of this decreased oxygen and blood supply, there will be ischemia and ischemic pain. That is the angina pectoris. It is of three types: stable angina, unstable angina, and variant or Prinzmetal's angina. Now what about the stable angina? Stable angina will occur, the attack of stable angina will occur as a result of strenuous muscular exercise, heavy muscular exercise, or severe emotional disturbance, and it will always respond to sublingual nitrates, GTN. Tablet NGSAID is given sublingually or rest or both. When we will give the angina patient rest and sublingual nitrate, the patient of stable angina will always respond. So it has a stable pattern of onset, duration, and intensity of symptoms. We can predict that this is an angina patient, and if he or she will get strenuous muscular activity or severe emotional stress, so then he or she can have a stable angina attack. So the pattern of the stable angina is predictable. In case of unstable angina, pain can even occur on rest or with a slight degree of exertion, physical exertion or emotional stress can result into an attack of unstable angina. There will be chest pain, and this unstable angina is progressive disease. हर बाद में आने वाला अटैक पिछले अटैक से लॉन्गर ड्यूरेशन का और सिवियर हो सकता है. इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज and it interferes with the lifestyle of the patient. Both in case of stable angina and unstable angina, there is atheroma formation inside the coronary arteries, while the third type, variant angina or Prinzmetal's angina, there is vasospasm of the coronary arteries. There is no atheroma inside the coronary arteries. It is the vasospasm, constriction of the coronary arteries, which result into decreased blood supply to the myocardium, and an attack of angina will occur. Variant angina. Always the angina and MI
will occur when the myocardial oxygen demand is increased and coronary arteries are supplying less amount of oxygen to the cardiac muscles. It will result into an attack of angina or myocardial infarction. Now, what are the causes of coronary artery disease? Number one cause, atherosclerosis, atheroma formation inside the coronary arteries, plaque formation inside the coronary arteries due to hyperlipidemia, hypercholesterolemia, obesity, increasing age. We will see these risk factors which will result into this atherosclerosis. Now, further causes are conditions increasing preload and conditions increasing afterload. Preload means the condition resulting in hypervolemia, जो blood के volume को ज़्यादा करती हैं, for example hyperthyroidism, exercise anemia. The condition which are associated with increased amount of blood coming to the left ventricle, so that the left ventricle can pump this increased amount of blood to the body, and obviously the burden over the heart will increase. Now the condition increasing the afterload. First of all, hypertension, ऐसी blood vessels जिनका pressure ज़्यादा है. The blood vessels of the body are suffering from high blood pressure. ऐसी blood vessels में heart को blood pump करने के लिए, left ventricle को hypertension वाली, increased blood pressure वाली, हाई प्रेशर वाली आर्टरीज में ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन वो करेगा तो फिर हाई प्रेशर वाली आर्टरीज में ब्लड को पंप कर सकेगा. सो दैट विल रिजल्ट इनटू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी, इंक्रीज्ड वर्कलोड ओवर द हार्ट. एओर्टिक स्टेनोसिस भी, एओर्टा में ऑब्स्ट्रक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. सो दीज आर द कॉजेज इंक्रीजिंग बर्डन ओवर द हार्ट. This is a beautiful picture showing preload and afterload explanation. Preload is the volume of blood at when the ventricles are completely relaxed at the end of diastole, end diastolic pressure. End diastolic phase में जो volume है left ventricle के अंदर जिसको heart को pump करना है, that is called end diastolic pressure और end diastolic volume, and this is called preload. और hypervolemia से जो कंडीशंस एसोसिएटेड होती हैं दैट एक्चुअली इंक्रीज द प्रीलोड. नाउ व्हाट इज द आफ्टरलोड? इज द रेजिस्टेंस जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ओवरकम करनी है ब्लड पंप करने के लिए या बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड आफ्टरलोड, एंड इट इज इंक्रीज्ड मेनली इन हाइपरटेंशन और एओर्टिक स्टेनोसिस. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीलोड एंड आफ्टरलोड. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना? इट मे बी फेल्ट एज स्क्वीजिंग, बर्निंग, प्रेसिंग, choking pain. It can be felt as heavy pressure over the chest. It can be felt as a pain or heavy pressure over the chest or tight band around the chest. Onset may be quick or slow. Location is the parasternal. The chest pain of cardiac origin occurs along the sternum and it is radiated to left side of the neck, jaw, left arm, shoulder, and sometimes it is also radiated to the upper back. So the cardiac pain can radiate to all these areas. Now what is the location of this? Location of this cardiac pain mainly is the parasternal, and it can be radiated to the left side of the neck, jaw, left shoulder and left arm. Duration of the anginal pain is less than 5 minutes. ऐसी पेन जो 5 मिनट से 10 मिनट से ज़्यादा रहती है वो MI की पेन हो सकती है, वो एंजाइना की पेन नहीं हो सकती. There are associated symptoms as well. Dyspnea, difficulty in breathing, sweating, बहुत ज़्यादा पेशेंट को पसीना आता है, faintness and dizziness, unconsciousness जैसी फीलिंग होती है, and palpitation, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, पेशेंट को अपना जो दिल है वो तेज तेज धड़कता हुआ महसूस होता है. सो ऑल दिस एसोसिएटेड पेन, all these associated findings plus chest pain, these are the symptoms of angina. Now what are the relieving? And stable angina will always respond to nitrates and rest, while unstable angina may not. Respond तो करेगा लेकिन उस तरह से नहीं करेगा जैसे stable angina करेगा. एग्रेवेटिंग फैक्टर्स इस पेन के हैं एक्सर्शन, एक्सरसाइज, हैवी मील, इमोशनल अपसेट एंड एंगर. इनमें से कोई भी फैक्टर अगर पेशेंट एंजाइनल पेन के दरमियान में प्रैक्टिस कर रहा है तो ही और शी कैन एक्सपीरियंस एन एग्जैसरबेशन, एग्रेवेशन ऑफ द पेन एंड सिम्टम्स. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द डेथ ऑफ अ टिश्यू. Infarction means death of a tissue due to lack of oxygen supply, due to lack of blood supply.
This is also called heart attack in common terms. There is complete blockade of the coronary arteries and there is no blood flowing to that particular portion of the heart which is being supplied by that particular portion, that particular artery. एक आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है completely, उसका ल्यूमन completely बंद हो गया है. अब जिस पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स को वो सप्लाई कर रही थी उसको कोई ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जा रहा. एज अ रिजल्ट द डेथ ऑफ दिस टिश्यू कैन रिजल्ट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. कैस्केड ऑफ इवेंट क्या होता है? जब ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो मायोकार्डियल सेल्स का इस्कीमिया हो जाता है. ये जो इस्कीमिया है इसकी वजह से मायोकार्डियल सेल्स जो हैं अब अपना काम किस तरह से करें? ना ऑक्सीजन है और ना ग्लूकोज है. सो दे विल स्विच टू द एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड देयर इज लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन. ये लैक्टिक एसिड वो चीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट पेन एक्सपीरियंस करता है. So this lactic acid accumulation will causes the pain of myocardial infarction and अगर हम obstruction को relieve नहीं करेंगे तो death of the tissue will result. अगर obstruction relieve हो जाती है तो infarction होने से बच भी सकता है, but if the obstruction is there it will result into the myocardial infarction. What are the sign and symptoms of myocardial infarction और heart attack? एक तो पेन है और पेन जो है वो चेस्ट पेन है along the sternum and it can radiate to neck, jaw, back of shoulder or left arm. The pain will be felt like squeezing or heavy pressure as for example an elephant is sitting on the chest or there is a tight band around the chest. इस तरह की फीलिंग होती है. और डायबिटिक्स में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पेन नहीं होती बिकॉज डायबिटिक्स में न्यूरोपैथी होती है. आसाबी निज़ाम काम नहीं कर रहा, जो नर्व्स हैं बॉडी की दैट आर डैमेज्ड, न्यूरोपैथी होती है. तो इसलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पेन डायबिटिक्स में नहीं होती. इसलिए उनको हम कैसे डायग्नोज करती हैं? अदर सिम्टम से. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत दुश्वारी है पेशेंट को. वीकनेस, टायर्डनेस, एंजाइटी, लाइट हेडेडनेस, सर घूमता हुआ महसूस होता है. डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस जैसी फीलिंग होती है. और किसी भी सीवियर पेन के साथ नॉजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड हो सकता है. सो इसमें भी नॉजिया वॉमिटिंग एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर फीचर स्वेटिंग. बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, पेशेंट पसीने में नहा जाता है सर से लेके पाँव तक. सो ये हमारे हार्ट अटैक के या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के सिम्टम्स थे. देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम जिसमें कि स्टेबल एंजाइना नहीं आता. उसके बाद के जो इवेंट्स हैं अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई एंड एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई इसमें आते हैं एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम. सबसे पहले तो एक नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसके अंदर कोई एथरोमा नहीं है. कॉर्नरी आर्टरीज की बात हो रही है यहाँ पे. देयर इज़ नो एथरोमा फॉर्मेशन इन दिस नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी, सो द ब्लड सप्लाई इज़ एडिक्वेट. मायोकार्डियम को जितना ब्लड चाहिए वो जा रहा है. अब यहाँ पे एथरोमा फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई है लेकिन अभी इसने कोई सिम्टम्स शो नहीं किए. उसके बाद जब एथरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता है, एथरोमा का साइज इंक्रीज करता है, देयर विल बी स्टेबल एंजाइना बिकॉज नाउ द ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना में सबसे नीचे देखें, अनस्टेबल एंजाइना में ये एथरोमा जो है वो रप्चर हो जाएगा और इसके ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेट्स आना शुरू हो जाएंगे. दिस विल बी द पिक्चर ऑफ इनसाइड ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना. उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन से अगला इवेंट है क्लॉट फॉर्मेशन ओवर दिस रप्चर्ड एथरोमा. अगर छोटा क्लॉट बना है तो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई बनेगा. रिजल्ट एज अ रिजल्ट देयर विल बी नॉन एसटी एलिवेशन एमआई. और अगर बड़ा क्लॉट बन जाता है जो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है वेसल की ल्यूमेन को, कोई ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को नहीं जा रही जितने एरिया को ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये ब्रांच ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रही है. सो एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई विल रिजल्ट विच इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ये एक ईसीजी का एक ऐसा पोर्शन जो एक वन कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टली प्लस डायस्टली. So this is PQRST complex. One systole plus diastole, one cardiac cycle. P wave कब बनती है? एट्रियल रीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है. जब QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज करते हैं. और T वेव जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होती है. सो ST सेगमेंट इसमें से कहाँ है? एंड ऑफ S से लेके स्टार्ट ऑफ T तक. दिस इज ST सेगमेंट. ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से एलिवेट हो जाएगा in case of ST elevation MI. So this is a
पीस ऑफ ईसीजी, पार्ट ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंटिंग वन कार्डियक साइकिल, इसमें आपको मोर डिटेल के साथ नजर आएगा कि पी वेव किसकी वजह से बनती है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है जी। उसके बाद पी आर इंटरवल, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, और उसके बाद एस टी सेगमेंट, और उसके बाद टी वेव कैसे बनती है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, जो कि बड़े होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, उनकी रीपोलराइजेशन में भी वेव आती है। सो देर इज टी वेव इन रिस्पॉन्स टू द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. So this is the basics of ECG. Now what are the unstable angina, ST elevation MI and non-ST segment elevation MI? इनमें क्या differences होंगे? Unstable angina में myocardial infarction जैसी पेन होगी, जिससे हमें लगेगा कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, लेकिन जब हम ECG और लैब फाइंडिंग्स कराएंगे तो दैट वुड बी नॉर्मल, या उसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन हो सकता है या टी वेव इन्वर्जन हो सकती हैं, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, बट देयर विल बी नॉट मेजर. फॉर एग्जांपल लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं होगा, फॉर एग्जांपल जो है वो ST सेगमेंट एलिवेशन नहीं होगी अनस्टेबल एंजाइना में. और लैब फाइंडिंग्स विल बी नेगेटिव. ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, कार्डियक एंजाइम्स हम कराते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन को डायग्नोज करने के लिए. कार्डियक एंजाइम्स in response to myocardial injury, there is increased secretion of these cardiac enzymes which are specific for myocardial injury. Increased secretion of these enzymes into the blood, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. बेड साइड के आर अवेलेबल. In case of unstable angina, this cardiac enzymes will be negative. Troponin T, troponin I हम देखेंगे तो वो नेगेटिव होंगे. नॉन ST एलिवेशन MI में चेस्ट पेन होगी, और नॉन स्पेसिफिक CCG फाइंडिंग टी वेव इन्वर्जन, ST सेगमेंट डिप्रेशन, और इवन मे बी नॉर्मल. बट जब हम कार्डियक एंजाइम्स कराएंगे तो दैट वुड बी पॉजिटिव, डिपिक्टिंग मायोकार्डियल इंजरी. MI का डायग्नोसिस फाइनल हो गया व्हेन ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई विल बिकम पॉजिटिव लैब टेस्ट पे या बेड साइड किट पे. फाइनली ST एलिवेशन MI, sustained chest pain suggestive of acute myocardial infarction, and there is ST segment elevation और left bundle branch block. अब left bundle branch block क्या है, ये conduction abnormality है, ECG पे आती है in response to the conduction abnormality to the left bundle branch. क्योंकि आपको पता है conducting system of heart consisting of SA node, AV node, right bundle branch और left bundle branch. तो लेफ्ट बंडल ब्रांच का ब्लॉक अगर ECG पे आए तो दैट इज ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ ST elevation MI, a severe form of myocardial infarction. This picture is showing what is the condition of the inside of the coronary artery in case of stable angina. plaque है, लेकिन एक adequate amount of blood is going to be supplied to the myocardium, इसलिए स्टेबल एंजाइना है. अनस्टेबल एंजाइना में ये जो प्लैक है उसका रप्चर हो जाता है और उसके ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाते हैं. देयर विल बी अनस्टेबल एंजाइना एज अ रिजल्ट. और ST एलिवेशन, नॉन ST एलिवेशन MI में प्लेटलेट एग्रीगेट के ऊपर क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, बट ल्यूमन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, इसलिए नॉन ST एलिवेशन MI होगा. ST एलिवेशन MI कब होगा, सीवियर फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन कब होगा, व्हेन दिस क्लॉट फॉर्मेशन ओवर द रप्चर्ड एथेरोमा विल कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट द coronary arteries and there is no more blood going to the myocardium. What are the risk factors for the coronary artery disease? रिस्क फैक्टर हमेशा दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल जिनको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कोशिश करने से, लाइफस्टाइल चेंजेस से जिनको हम चेंज कर सकते हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं. वी कैन मेक देम बेटर. बट नॉन मॉडिफाइबल एज को नहीं कर सकते, जेंडर को, एथनिसिटी, हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री और टाइप 1 डायबिटीज़, इनको हम चेंज नहीं कर सकते. सो ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. सम आर मॉडिफाइबल एंड सम आर नॉन मॉडिफाइबल. दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ फॉर द पेशेंट. चेस्ट पेन का DD पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ऑल चेस्ट पेन आर नॉट कार्डियक पेन. चेस्ट में और भी स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट में लंग है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, pneumothorax, pneumonia can result in chest pain. The chest pain can simply be musculoskeletal due to trauma or due to muscle spasm. Chest pain may be of gastrointestinal origin due to esophageal spasm, due to gastroesophageal reflux disease, due to pancreatitis. So all these diseases can cause chest pain. So all the chest pain is not cardiac in origin. So we have to differentiate that whether the pain is cardiac or non-cardiac origin. Investigations
फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी बेड साइड पे रेडली अवेलेबल, ईसीजी करें, रिपीट ईसीजी करें, ईसीजी पे फाइंडिंग्स आ जाती हैं, एसटी एलिवेशन आ जाता है, स्विच टू द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो सो वी कैन डायग्नोज ऑन ईसीजी। ब्लड के जो इन्वेस्टिगेशंस करानी है, फुल ब्लड काउंट, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक एंजाइम्स आर डायग्नोस्टिक, कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव है मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, कार्डियक एंजाइम नेगेटिव है मायोकार्डियल इन्फाक्शन नहीं है। सो चेस्ट एक्सरे, जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस होते हैं हार्ट फेलियर के, उनमें डायलेटेड हार्ट नज़र आता है एक्सरे चेस्ट पे, इंक्रीज्ड ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग नज़र आती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस एकोकार्डियोग्राफी, कॉर्नरी एंजियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी इज द अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, you all know. So in case of unstable angina, this set of investigation, ECG will be normal, possible ST segment depression can be there. In case of non-ST elevation MI, there will be raised troponin T, troponin I, cardiac enzymes will be positive. There can be ST depression or T wave inversion on ECG. And in case of ST elevation MI, there is ST segment elevation, hyperacute, lambi badi T waves, new left bundle branch block. So these investigations and ECG findings will differentiate between an attack of unstable angina, ST elevation MI and non-ST elevation MI. ये जो एक ECGs इसमें नज़र आ रही हैं, सबसे पहले नॉर्मल ECG जिसमें सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। उसके बाद है ST एलिवेशन MI जिसमें ST सेगमेंट जो है वो एलिवेट हो गया। एलिवेशन को हम कैसे देखेंगे, लिम्ब लीड्स में है ग्रेटर देन 1 mm एलिवेशन होगी तो हम कहेंगे ये ST सेगमेंट एलिवेटेड है, और चेस्ट लीड में ग्रेटर देन 2 mm एलिवेशन होगी तो हम कहेंगे कि ST एलिवेशन है। सो दिस सेकेंड ECG इज ST एलिवेशन एंड दिस थर्ड ECG इज ST डिप्रेशन, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे जा रहा है तो ST डिप्रेशन जो कि अनस्टेबल एंजाइना में, और नॉन ST एलिवेशन MI आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे जा रहा है। और फाइनली फोर्थ डायग्राम में देर इज T वेव इन्वर्जन, वेन एवर देर इज इस्कीमिया देर कैन बी T वेव इन्वर्जन। ST एलिवेशन कहाँ पे होता है, वेन देर इज इंजरी टू द मायोकार्डियल सेल्स, और जब इन्फाक्शन हो जाता है तो Q वेव्स आती हैं और महीनों तक आती रहती हैं। जोन ऑफ इस्कीमिया होगा, T वेव इन्वर्जन आएगी, जोन ऑफ इंजरी होगी, ST एलिवेशन आएगी, जोन ऑफ नेक्रोसिस होगी, इन्फेक्शन हो चुका हुआ है, एबनॉर्मल Q वेव्स आएंगी। दीज आर द ECG चेंजेस इन एंजाइना एंड MI। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है, लूज वेट, क्विट स्मोकिंग, अगर क्विट नहीं कर सकते नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक पर डे कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल कम करें, स्टैटिन्स, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपना ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रखें, स्ट्रेस को रिलीज करने की टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स सीखें, ईट राइट, रेगुलर एक्सरसाइज। सो ऑल दीज आर द various steps which we can take for the prevention of the coronary artery disease in a patient. Now, treatment of acute attack of stable angina. सबसे पहले sublingual nitroglycerin tablet NGCET, drug of choice, acts in about 1 to 2 minutes. It reduces arteriolar and venous tone, so dilate the blood vessels supplying the heart so that increase the blood supply to the myocardium, relieve ischemia and relieve pain. नाइट्रोग्लिसरीन में भी रिपीटेड आफ्टर 3 to 5 minutes, 3 doses तक हम दे सकते हैं। पेन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू 3 tablets और लास्टिंग मोर देन 20 minutes, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पेन हो सकती है, रश टुवर्ड्स द मेडिकल इमरजेंसी। नाइट्रोग्लिसरीन बकल स्प्रे भी अवेलेबल है नाइट्रोमिंट के नाम से, 1 to 2 स्प्रे कैन बी गिवन बिलो द टंग। प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स कैसे करना है, मेनली नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करेंगे, हार्ट की ब्लड सप्लाई को नाइट्रेट से इंक्रीज करेगा, और बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट के ऊपर प्रेशर को, हार्ट के ऊपर स्ट्रेन को कम करेंगे। एसोसिएटेड ड्रग्स, एस्पिरिन, ब्लड थिनर्स, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर लिपिडीमिया को ट्रीट करेंगे। सिम्वास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन 10 milligram once or twice a day. Now what is the revascularization and what are the indications of revascularization? जो एथिरोमा बन गया है और वो सिम्टम्स कॉज कर रहा है और रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं एंजाइना के, पेशेंट एडिक्वेट मेडिकल थेरेपी भी ले रहा है, मेडिकेशन भी पेशेंट टाइम पे लेता है, उसके बावजूद रिकरेंट सिम्टम्स हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं पेशेंट्स के लिए, तो हम रीवास्कुलराइजेशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। पेशेंट विद अनस्टेबल एंजाइना,
पेशेंट को MI हो चुका है और उसके बाद सिम्टम्स भी हैं. सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ रिवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर्स. रिवास्कुलराइजेशन क्या है? PTCA, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, जिसको स्टेंटिंग कहते हैं. कैबेज, ओपन हार्ट सर्जरी, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. सो इट कैन बी परकुटेनियस प्रोसीजर, इट कैन बी ओपन हार्ट सर्जरी, PTCA और कैबेज. ये है एक डायग्राम जो शो करती है कि PTCA या परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है. हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, CT पे, एक्सरे पे हम देख रहे हैं पेशेंट को डाई इंजेक्ट की हुई है, पूरी बॉडी की ब्लड वेसल जिनमें हार्ट की ब्लड वेसल भी डिलिनिएट हुई है हमें नज़र आ रही हैं. नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे. और एक गाइड वायर, उसके ऊपर बैलून, इन्फ्लेटेबल बैलून लगाया हुआ है. इन्फ्लेटेबल बैलून के ऊपर स्टेंट है और फेमरल आर्टरी से हमने जाना है. और जब ये नैरोड पोर्शन आर्टरी का हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो इस इन्फ्लेटेबल बैलून को हम इन्फ्लेट कर देते हैं और इसके ऊपर जो स्टेंट है वो खुल जाता है. ये खुला हुआ स्टेंट उस नैरोड पोर्शन ऑफ आर्टरी में हम छोड़ देते हैं और बाकी ऑपरेटर्स वापस विदड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से स्टेंटिंग की जाती है. एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन का जब अटैक हुआ है तो उस वक्त भी दिस इज़ एन ऑप्शन, सर्जिकल ऑप्शन एंड वेरी सेफ ऑप्शन. उस वक्त भी ये कर सकते हैं. लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि नैरोड पोर्शन ऑफ द आर्टरी के बेंड पे तो नहीं है, बेंड पे है तो फिर स्टेंट कैसे डालेंगे. तो इस तरह के कुछ रेयर कॉन्ट्राइंडिकेशन या कॉम्प्लिकेशंस में अराइज. इस डायग्राम में देखिए, हम CT पे हम देख रहे हैं डिलिनिएट हुई हुई नज़र आ रही हैं कॉर्नरी ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ वो भी नज़र आ रही है. इस ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल पे हमने पहुँचना है. वहाँ जब हमारा ऑपरेटर्स पहुँच जाएगा, ये हमारी गाइड वायर विद इन्फ्लेटेबल बैलून विद ओवरलेइंग स्टेंट, ये जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो हम वहाँ ले जाके इसको जो है वो बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे और स्टेंट को इन प्लेस छोड़ के तो बाकी ऑपरेटर्स जो है वो विदड्रॉ कर लेंगे. दिस इज़ हाउ PTCA, परकुटेनियस प्रोसीजर, इज़ डन. ट्रीटमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, हॉस्पिटलाइजेशन, बेड रेस्ट, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सेचुरेशन शुड बी 99 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. पेशेंट जिसको हाइपोक्सिया है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे. सिडेशन देंगे एंजाइटी के लिए. पेशेंट बहुत परेशान होता है तो उसको एंजियोलिटिक देते हैं. टैबलेट जेनेक्स 0.5 मिलीग्राम दे सकते हैं. इंजेक्शन मॉर्फिन अलॉन्ग विद एन एंटीमेटिक दे सकते हैं. आपको पता है मॉर्फिन जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है और मॉर्फिन वॉमिटिंग करती है, इसलिए उस मॉर्फिन को हमेशा, सिडेटिव को, मॉर्फिन को हमेशा एंटीमेटिक के साथ देते हैं. मेंटेनेंस ऑफ पल्स टू 60 पर मिनट एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर टू 100 to 120 सिस्टोलिक. हार्ट के ऊपर स्ट्रेन को, बर्डन को कम करना है. इसके अलावा हेपरिन ब्लड थिनिंग के लिए, थिन ब्लड जो है वो आसानी से टिश्यूज़ तक जाएगा. एंटी प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेशन हो रही है. नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स. तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना में. और उसके अलावा रिवास्कुलराइजेशन वी कैन कंसिडर. Treatment of myocardial infarction, number 1 general measures, number 2 specific measures. Now what are the general measures? Hospitalization preferably to CCU, supplemental oxygen if the oxygen saturation is low, strict bed rest for 12 hours. डाइट में NPO नथिंग पर ऑरल. पेशेंट मुंह से कुछ भी ना खाए. क्यों? क्योंकि वो वॉमिटिंग कर सकता है. ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से, एंजियोलिटिक्स दिए हुए हैं उसकी वजह से, पेन की वजह से वॉमिटिंग को एस्पिरेट कर सकता है. इस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए 4 to 12 आवर्स के लिए पेशेंट को या तो NPO कर दें या सिर्फ क्लियर फ्लूइड्स दें. सिडेशन फॉर एंजाइटी, टैबलेट जेनेक्स दी जा सकती है या IV मॉर्फिन दी जा सकती है. पेन रिलीफ भी करेगी और एंजाइटी को भी रिलीव करेगी. Now what are the specific therapy for myocardial infarction? Pain relief will be achieved with the combination of oxygen, morphine, nitrates and beta blocker. ऑक्सीजन इस्कीमिया को रिलीव करेगी तो पेन रिलीव करेगी. मॉर्फिन एंजियोलिटिक है, सिडेटिव है, पेन रिलीव करेगी. नाइट्रेट्स जो हैं ये आर्टीरियोलर और वीनस डायलिटेशन करेंगे, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, इस्कीमिया रिलीव करेंगे, सो दैट पेन करेंगे. बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, स्ट्रेन को कम करेंगे हार्ट के ऊपर, सो पेन रिलीव करेंगे. एस्पिरिन देनी चाहिए पेशेंट को. फर्स्ट डोज जो है वो च्यूएबल फॉर्म में दें तो थेराप्यूटिक लेवल्स अचीव हो जाते हैं, जल्दी ब्लड में पहुंच जाती है एस्पिरिन. उसके बाद मेंटेनेंस डोज 75 to 300 mg डेली. पेशेंट को नाइट्रेट्स देने हैं हमने अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड. कुछ टाइप्स हार्ट अटैक की ऐसी होती हैं जिसमें नाइट्रेट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, सो उन कॉन्ट्राइंडिकेशंस को रूल आउट करने के बाद नाइट्रेट्स पेशेंट को ज़रूर दें.
आईवी इन्फ्यूजन नाइट्रेट्स की इंजेक्शन आइसोकिट के नाम से आती है। वो हाई ब्लड प्रेशर, जिन पेशेंट्स का हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रही होती, हाई ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा होता, उनको आइसोकिट की इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स देने का बहुत फ़ायदा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट को। इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियक रप्चर, इट डिक्रीजेज इस्कीमिक चेस्ट पेन एंड इट डिक्रीजेज द इन्फार्क्ट साइज। इन्फार्क्ट साइज को छोटा करता है, ये इन्फार्क्ट साइज को बड़ा होने से बचाता है। मीटोप्रोलोल दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स में। इंजेक्शन लो प्रेशर के नाम से आता है। हर 5 मिनट के बाद इंजेक्शन दें 5 mg का। 3 डोजेज़ दी जा सकती हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि हार्ट रेट 60 से कम ना हो और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम ना हो। उसके बाद ओरल मेंटेनेंस डोज पे डाल देना है। सो बीटा ब्लॉकर्स के ये सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन पेशेंट्स को देना है जिनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत नीचे नहीं जा रहा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से। एस इन्हिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर्स, बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिकेशन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं, जिसमें वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हो गई है बहुत ज़्यादा, उनको लाइफ लॉन्ग सारी ज़िंदगी के लिए एस इन्हिबिटर्स पर डालना चाहिए। टैबलेट कैपोटिन, जिसके अंदर कैप्टोप्रिल होती है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नाम से जाहिर है कि थ्रोम्बस को तोड़ने वाली थेरेपी, और ये क्या करती है, कॉर्नरी आर्टरी जो ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है उसकी पेटेंसी को रिस्टोर करती है, उसको दोबारा से खोल देती है। इन्फार्क्ट साइज को कम करती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन को प्रिजर्व करती है और सर्वाइवल ऑब्वियसली इम्प्रूव करती है। अगर पेशेंट को फर्स्ट 1 to 3 आवर्स में, पहले 3 घंटे में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद पहले 3 घंटे में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी मिल जाए तो देयर कैन बी 50% और ग्रेटर रिडक्शन इन मोर्टेलिटी। दिस कैन बी अचीव्ड। ये सारे पेशेंट्स को 12 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर देनी चाहिए। वो पेशेंट जिनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो है वो आपको पता है कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी कर सकती है। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन को रूल आउट करने के लिए सारे पेशेंट, कॉन्ट्राइंडिकेशन को रूल आउट करने के बाद सारे पेशेंट जो MI के हैं उनको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी चाहिए हु प्रेजेंट विद इन 12 आवर्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एपिसोड। 2 ऑप्शन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज या एल्टीपेज, दोनों में से कोई भी दे दें। स्ट्रेप्टोकाइनेज के साथ हेपरिन नहीं देनी पड़ती, एल्टीपेज के साथ हेपरिन भी देनी पड़ती है। उसके बाद एंटीकोएगुलेंट्स, ठीक है, दोबारा से थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो इसलिए एंटीकोएगुलेंट्स देने हैं। जिनको स्ट्रेप्टोकाइनेज मिला है उनको हेपरिन देने की ज़रूरत नहीं है, जिनको एल्टीपेज मिला है उनको साथ में हेपरिन भी देनी है और पेशेंट को एस्पिरिन भी देनी है। जिसको हेपरिन मिल रही है उसको नहीं, उसके अलावा सारे पेशेंट्स को एस्पिरिन भी देनी है। इसके अलावा एक्यूट अटैक ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए सेफर ऑप्शन क्या है, निस्बतन बेहतर ऑप्शन क्या है कि जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी, उसी वक्त आप प्राइमरी परकुटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन कर लें, उसी वक्त स्टेंटिंग कर दें। इट इज़ अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। आर्टरी ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है ना, तो आप इमरजेंसी में पेशेंट की स्टेंटिंग कर दें, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा PTCA, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी।